Good morning, everyone. My voice is audible to you? Yes. Okay, ma'am. So, shall we start? Yes. It is my proud privilege to welcome you all on such an auspicious day, that is New Year of India. I welcome all the dignitaries and wish you a great year ahead. We are blessed to have our principal, Dr. Kiran Angra, to support us in all our endeavors and to motivate us and to organize such a informational webinar on teachings and martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji. I also welcome, and my joy knows no bound, to welcome Dr. Manveer on today's event. Now I invite my dear colleague Dr. Monica to introduce resource person of the day for the webinar being conducted by Department of English. Very good morning to all present here. Am I audible? Yes, you are audible. I, Dr. Monica, on behalf of Department of English and MDSD Girls College, extend a hearty welcome to Dr. Manveer Kaur, the resource person of today's webinar on Guru Tegh Bahadur Ji, Teachings and Martyrdom. She is an assistant professor in Khalsa College, Mohali, and she has completed MPhil and PhD in history from Punjab University, Chandigarh. I feel proud to share with you that she is a university gold medalist in MPhil. She also worked as assistant professor in Shri Guru Gobind Singh College, Chandigarh. And with her research specialization in urbanization, she has written a dozen research papers in prestigious books and journals. Presently, she serves as member of Board of Undergraduate Studies in the subject of history in Punjabi University, Patiala. So let us again welcome Dr. Manveer, and we can see that ma'am has made a very picturesque and a very colorful presentation. So I request her to start with her deliberation. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Very good morning to one and all present here. Firstly, I am grateful to the respective Principal Madam, Dr. Kiran Angra, for providing me such golden opportunity to deliver a lecture on Shri Guru Tegh Bahadur Ji. I am also very thankfully English Department, Organizing Secretary Mrs. Karamjit Kaur, co-convener Dr. Monica Tillon, convener Dr. Anuradha, and all the students present here. I hope this lecture will enhance the knowledge of students about the ninth Sikh Guru Tegh Bahadur Ji. So my theme is Guru Tegh Bahadur Ji, Teachings and Martyrdom. The Guruship period of Guru Tegh Bahadur Ji is from 1665 to 1675. So first we will discuss his early life. Guru Tegh Bahadur Ji सिखों के 9वें गुरु थे। उन्हें हिंद की चादर के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की राखी के लिए अपना शीश दिया था। उनका बचपन का नाम श्री त्यागमल था। उनके पिताजी ने उनको तेग बहादुर नाम दिया जब उन्होंने करतारपुर में हुई लड़ाई में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। तेग बहादुर शब्द का अर्थ है वार का धनी या बहादुर। उनका जन्म
1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। वह गुरु हरगोबिंद जी के 5 पुत्रों में से सबसे छोटे थे। उनके 5 पुत्र थे, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल, बाबा अटल राय, अली राय एंड तेग बहादुर। तेग बहादुर जी की माता का नाम नानकी था। तेग बहादुर जी की नॉलेज बहुत वास्ट थी। उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि तर्क शास्त्र, रामायणा, महाभारत, गीता, कुरान, सूफी टेक्स्ट, ऐसे धार्मिक ग्रंथों की उन्होंने स्टडी की हुई थी। इसके अलावा उन्हें कई लैंग्वेजेस का भी काफी ज्ञान था। उनको उन्हें अपनी माता पिता से कोमलता, स्नेह, निडरता, दिलेरी, जुल्मों के विरुद्ध लड़ना उन्होंने सिखाया। उन्होंने अपने पिता हरगोबिंद जी से मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की। तेग बहादुर जी इवन उनके बाकी के जो ब्रदर्स, वो सारे के सारे तलवारबाजी, हॉर्समैनशिप में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। उनमें वो तलवारबाजी में काफी ज्यादा निपुण हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी म्यूजिक एंड पोएट्री में भी इंटरेस्टेड थे। अपनी अर्ली लाइफ में वह कई एमिनेंट पर्सनैलिटी से प्रभावित हुए। फॉर इंस्टेंस, उनके जो टीचर्स थे, भाई बुड्ढा जी, भाई गुरदास, भाई विधि चंद से उन्होंने मानवता की सेवा और आत्म समर्पण की भावना सीखी। गुरु तेग बहादुर जी ने काफी ज्यादा बानी गुरबानी भी लिखी है, जो कि आदि ग्रंथ साहिब में दर्ज है। गुरु जी ने 59 शब्द लिखे हैं और 57 श्लोक की रचना की है। आपने अपनी बानी में संसार की नाशवानता को अटल सच्चाई बताया है और संदेश दिया कि इस संसार में कोई भी जीव या वस्तु हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकती। तो मनुष्य को मोह माया त्याग कर प्रभु के नाम से जुड़ना चाहिए। उनका विचार यह था कि एवरीथिंग इज इमॉर्टल, कुछ भी यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली कंटिन्यू नहीं रह सकता। हर चीज का विनाश है जो अनिवार्य है। उनके गुरु साहब ने अपने जीवन के ऑलमोस्ट 20 इयर्स थे जो उनके 1645 से लेके 1666 तक बकाला में बिताए हैं। उनकी मैरिज है जो माता गुजरी जी से हुई है। उनकी वाइफ का नाम यानी कि माता गुजरी था। और 1666 में उनके घर में गोविंद राय बेटे का जन्म हुआ, जो कि बाद में जाके 10th सिख गुरु बनेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से। सो जो गुरुशिप पीरियड है गुरु तेग बहादुर जी का, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इससे जुड़ी हुई है। गुरु हरगोबिंद जी ने गुरगद्दी जो है अपने 5 बेटों में से किसी को नहीं दी थी। एक्चुअली 3 बेटों की डेथ हो गई थी उस टाइम पे, और जो जीवित थे तेग बहादुर जी उनको अभी वो रेडी नहीं मानते थे कि वो गुरु सिख गुरु बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भक्ति भावना में लीन रहते थे। वो दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए नहीं थे और अभी वो बकाला में भक्ति में ही निपुण रहते थे गुरु तेग बहादुर जी। सो गुरु हरगोबिंद जी ने गुरगद्दी जो है गुरु हर राय जी को दी है। हर राय जी कौन है? बाबा गुरदित्ता जी के बेटे थे, यानी कि हरगोबिंद जी के ग्रैंडसन थे, वो पोते थे। क्योंकि उसके बाद हर राय जी के बाद हर कृष्ण जी को सिखों के 8th गुरु बनाया गया। ठीक है जी। 1664 में हर कृष्ण जी ने अपनी डेथ से पहले किसी को भी अगेन उन्होंने गुरगद्दी नहीं दी और लास्ट वर्ड्स ये बोले कि बाबा बकाला। हर कृष्ण जी का बाबा बकाला कहने का मतलब क्या था कि नेक्स्ट गुरु है जो सिखों का 9th गुरु है जो वो बकाला में है, बट वो कौन है ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। सो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन अमंग दी सिख संगत कि एक्चुअल 9th गुरु कौन है। तो ये जो खबर जो है बकाला में जब पहुंची है तो वहां पे अराउंड 22 पर्सन कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज गुरु। 22 पर्सन ने अपने आप को सिख गुरु कहना शुरू कर दिया। But there was an incident happened. There was a person named मक्खन शाह लुबाना। मक्खन शाह लुबाना नाम का एक व्यापारी था, ट्रेडर था, मर्चेंट था मुगल दरबार का ही, जिसने एक उस पर मुसीबत आई थी। उसने 500 मोहरें सिख गुरु को देने का वचन दिया था, क्योंकि एक बार उसका व्यापारिक जहाज जो था समुद्री तूफान में डूब रहा था। तब उसने गुरु जी को 500 मोहरें देने की मन्नत मांगी। बट व्हेन ही केम टू बकाला, जो मैंने अभी ये स्क्रीन शेयर की है आपके साथ, वो मक्खन शाह लुबाना की ही है। कैसे उसका समुद्री जो जहाज था वो सी में गया है, फिर उसने वचन किया गुरु जी से कि मैं 500 मोहरें आपको दूंगा
और फिर वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जो है गुरु तेग बहादुर जी से, सिख गुरु से एक्चुअली में वहां पे मिलने आया। उस टाइम पे मक्खन शाह को भी नहीं पता कौन सिख गुरु है वहां पे, कि कौन सिख। यस मैम। Sorry to disturb you, but your slides are not moving. It's showing us first slide only. मैम अब देखो आ रहा है मैम? फर्स्ट ही आ रही है मैम, चेंज नहीं हुई फर्स्ट आपकी। ही आ रही है। प्लीज हाँ जी, वेट, हाँ जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, प्लीज वेट। नो इशू, मैं अभी करवा देती हूँ। अब देखो मैम, फर्स्ट ही दिखाई दे रहा है मैम अभी ना। आप कौन सी स्लाइड पे हैं? कोई बात नहीं, अभी हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मैम। मैम एक मिनट आए हो इसमें। तो ये जो मक्खन शाह लुबाना की स्टोरी गुरु तेग बहादुर जी के साथ जुड़ी हुई है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब वो मकाला में आते हैं तो उसने देखा कि यहाँ पे 22 पर्सन हैं कि वो किसको 500 मोहरे दें। तो उसने एक प्लान कह लो या कुछ उसके जो भी दिमाग में आया उसने बनाया, और उसने 22 पर्सन को 2-2 मोहरे देनी स्टार्ट कर दी कि जो भी सच्चा होएगा वो बोलेगा। ठीक है। तो जब वो गुरु तेग बहादुर जी के पास 2 मोहरे दी उसने, मैंने स्क्रीन होना शेयर नहीं हो रही एक्चुअली, सेकंड में कितनी है। तो जब उसने गुरु तेग बहादुर जी को 2 मोहरें दी हैं, तब गुरु जी बोले कि उस टाइम तो 500 मोहरों की बात हुई थी और अब तो सिर्फ 2 मोहरें ही हमें दे रहा है। सो मक्खन शाह लुबाना को के मन को पता चल गया कि मैंने गुरु को ढूंढ लिया है। तो वो खुशी से ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगा, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। सो दिस वाज द स्टोरी हाउ गुरु तेग बहादुर बिकेम 9th सिख गुरु। सो इस तरह गुरु तेग बहादुर जी हैं जो 1665 में सिखों के 9th गुरु बने हैं। मैम शेयर हो रही है? मैम डॉक्टर अनुराधा। Yes ma'am, now it is being shared by you. We are on the second slide I think now. Yes I'm sorry for the interruption, sorry. Okay, next. So जब सिख गुरु वो डिक्लेयर हो गए हैं, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी ट्रेवल्स की हैं थ्रू आउट इंडिया। गुरु जी ने सिख धर्म के प्रचार के लिए चारों डायरेक्शंस में, सेम एज गुरु नानक देव जी ने जैसे उदासियां की थी, उसी तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने ट्रैवलिंग्स की हैं थ्रू आउट इंडिया। और उनकी ज्यादा ट्रैवलिंग्स जो हैं ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा हुई हैं, जैसे कि हम फैक्ट से देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन द मैप एज वेल। 1666 से लेके 1670 तक ईस्टर्न इंडिया, यूपी, बिहार की उन्होंने यात्रा की है। इस टाइम उनके साथ उनकी माता नानकी और वाइफ माता गुजरी, भाई मतीदास, सतीदास, दयाला जी उनके साथ थे। और गुरु साहब ने रोपड़, बनूड़, सैबाबाद से होते हुए वो दिल्ली पहुंचे हैं। और वह वहां पे सैबाबाद के बाद जब वो दिल्ली गए हैं तो वहां पे औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे। तो उनको फर्स्ट जो उनकी अरेस्ट हुई है वो इस टाइम पे हुए जब वो फर्स्ट अपनी ट्रैवलिंग कर रहे थे। जब उनको औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो वहां पे अम्बेर का, जयपुर का राजा था राम सिंह। तो उसने गुरु तेग बहादुर जी की साधु भावना की गुरु औरंगजेब से बात शेयर की है कि ये गुरु जी ऐसा कोई गलत प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये जो यात्रा कर रहे हैं वो गलत प्रचार के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी भी और धर्म के अगेंस्ट वो नहीं बोल रहे हैं, तो उनको अरेस्ट ना किया जाए। तो फिर राजा राम सिंह के कहने पर औरंगजेब ने उनको छोड़ दिया और वो पूरा 1 महीना जयपुर में राजा राम सिंह के साथ रहे। इसी टाइम के दौरान फिर गुरुजी ने मथुरा, वृंदावन, आगरा, कानपुर, प्रयाग, बनारस की यात्रा की है। और यहाँ पर तेग बहादुर जी ने अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी के मैसेज को पूरे भारत में पहुंचाया और हर जगह सिख केंद्र यानी कि संगत, जो प्रथा गुरु नानक देव जी ने शुरुआत की थी संगत और लंगत की, उसको कंटिन्यूस रखा है। और संगत की उन्होंने हर जगह स्थापना की है। संगत क्या होती थी कि संगत जो लोग सिख
गुरुजी उनको गुरुजी उस सिख संगत में सिख धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है जी। उन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान लोगों में प्रचलित जो अंधविश्वास आए हुए थे, रीति रिवाज थे, उनका विरोध किया। और सेम एज गुरु नानक देव जी की जो मेन टीचिंग थी कि वन गॉड, कंसेप्ट ऑफ वन गॉड, कि एक परमात्मा के नाम का सिमरन करने का उपदेश दिया। इसके बाद गुरुजी ने अपनी माता और पत्नी को पटना में छोड़कर खुद वो ढाका यानी कि असम एरिया में चले गए सिख धर्म के प्रचार करने के लिए। और पटना में ही 1666 में उनके बेटे गोविंद राय का बर्थ हुआ वहां पे। और असम के बाद वह रोहतक, जो कि हरियाणा के सारे एरियाज हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र, पेहोवा, लखनऊ की उन्होंने यात्रा की है। और 1673 में गुरु तेग बहादुर जी ने पंजाब के मालवा और हरियाणा के बांगड़, बांगड़ इज द एरिया बिटवीन गग्गर एंड यमुना रीजन्स की यात्रा की। अराउंड 1674 एंड 75 में वह अपने परिवार के साथ चक नानकी जो नाम है अनंतपुर साहिब में आ गए। इसी टाइम पीरियड के दौरान औरंगजेब, हु वाज द अगेन मुगल रूलर ऑफ इंडिया, हर किसी को मुसलमान बनाना चाहता था। वह इंडिया के दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था। नाउ व्हाट इज दारुल हर्ब? दारुल हर्ब ये था कि वो इंडिया को काफिरों की धरती मानता था, कि यहाँ पे जो गैर मुस्लिम्स है दे आर काफिर, और वो उन सबका रिलीजन जो है वो कन्वर्ट करना चाहता था। वो सभी को, हिंदूज है या सिख्स हैं या कोई भी और रिलीजन जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको वो मुस्लिम बनाना चाहता था। उसने हिंदुओं पर, क्योंकि हिंदू जो थे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द हिंदूज एट दैट टाइम, जो हिंदू थे उन पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां लगाई हुई थी। उन पर जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स लगाया गया था। नाउ व्हाट इज जजिया एंड पिलग्रिमेज? पिलग्रिमेज टैक्स था कि हिंदू जब भी अपने किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। सो दीज वर दी ऑर्थोडॉक्सी ऑफ औरंगजेब। उसने मुसलमान बनने वालों को गवर्नमेंट जॉब्स का लालच दिया कि जो भी व्यक्ति अपना धर्म चेंज करके, वर्ट करके मुस्लिम बन जाएगा, उसको गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी या उनको पैसा दिया जाएगा। औरंगजेब सिखों की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के भी खिलाफ था। वह गुरु तेग बहादुर जी की यात्राएं और सिख धर्म के विकास के अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहता था, क्योंकि सिख धर्म इस टाइम पे सिख संगत जो थी बहुत ज्यादा नंबर उनका इंक्रीज हो गया था। इसके अलावा कुछ और भी विरोधी ताकतें थी विद इन पंजाब एंड आउटसाइड द पंजाब हु वर अगेंस्ट द गुरु तेग बहादुर। पंजाब में नक्शबंदी थे जो कि सिखों के हमेशा खिलाफ रहे थे। उन्होंने गुरु अर्जन देव के खिलाफ भी बहुत सारी कार्रवाई की है। नाउ दे वर अगेंस्ट गुरु तेग बहादुर। नक्शबंदियों की जो कट्टरता थी, धार्मिक कट्टरता यानी कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी, वो उन्होंने औरंगजेब के कान जो है गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ भरने शुरू कर दिए। ठीक है, कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है जो बढ़ रही है, ये सिख सेंटर्स भी अपने ज्यादा से ज्यादा खोल रहे हैं, तो इस तरह की बातें उन्होंने औरंगजेब को भड़काना शुरू कर दिया। इसके अलावा दो व्यक्ति और भी थे जो तेग बहादुर जी के अगेंस्ट थे और उन्होंने मुगलों का साथ दिया। वो कौन थे? एक था 8वें सिख गुरु हर राय जी के बड़े ब्रदर थे धीरमल जी, और एक थे गुरु हरकृष्ण जी के ब्रदर राम राय। उन्होंने भी गुरु तेग बहादुर जी का बहुत विरोध किया क्योंकि वह खुद गुरगद्दी पर बैठना चाहते थे और उन्होंने मुगल शासकों का साथ दिया। ठीक है, जो वो नेक्स्ट आते हैं, इसमें जो नेक्स्ट इंसिडेंट, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आता है वो है कश्मीरी पंडित का। औरंगजेब ने कश्मीर के गवर्नर शेर अफगान को वहां के पंडितों को जबरी मुसलमान बनाने का हुक्म दिया। तो औरंगजेब का यह विचार था कि अगर इन पंडितों को मैंने मुस्लिम बना लिया तो पूरे इंडिया को मुस्लिम बनाना इजी हो जाएगा। इस पर्पज के लिए कश्मीरी पंडित पर जुल्म दिखाए गए।
जो कश्मीर एरिया था वह कट्टर ब्राह्मणिज्म था वहां पे, ठीक है। उनका सभी का मुस्लिम्स का यानी कि मुगल्स का यही विचार था कि अगर हमने इनको मुसलमान धर्म एक्सेप्ट करवा दिया, then it will become easy to convert the whole population of India into Islamism. So इस बात से चिंतित होकर 16 कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल 1675 में पंडित कृपा राम की अगुवाई में अनंतपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी से मिला। उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने की बेनती की कि इस टाइम वो क्यों वहां पे आए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी और सिख रिलीजन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि हमें इस व्यक्ति को यानी कि इस सिख गुरु को मिलना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के। गुरुजी ने सोच विचार करके बोला कि इस काम के लिए यानी कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए किसी महान व्यक्ति की शहीदी की जरूरत है। इसी बात पर उनके पास बैठे उनके बेटे गोविंद राय जो कि गुरु तेग बहादुर जी के बेटे हैं और उस टाइम पे उनकी उम्र सिर्फ 9 इयर्स की है। उन्होंने बोला, पिताजी इस काम के लिए आपसे महान और कौन हो सकता है। सो गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक और जनेऊ यानी कि हिंदू की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने का फैसला कर लिया और कश्मीरी पंडित को बोला कि वह मुगलों को मैसेज दे दें कि अगर वह गुरुजी को मुस्लिम बना देंगे तो वह खुद भी मुस्लिम बन जाएंगे। जब यह बात मुगल एम्परर औरंगजेब के पास पहुंची तो उसने गुरु तेग बहादुर जी को मुस्लिम बनाने की योजना बनाई और उसने तुरंत उनको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सो 11 जुलाई 1675 को गुरुजी ने अपने 3 सिखों भाई मतीदास, सतीदास, दयाला जी जो स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रहे हैं, भाई मतीदास, सतीदास, दयाला जी के साथ अनंतपुर से दिल्ली की तरफ चल पड़े। रास्ते में मुगल फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में औरंगजेब के सामने पेश किया गया। अकॉर्डिंग टू गुरु की साखियां, साखी नंबर 29, ये जो साखीज लिखी गई हैं ये अलग अलग हिस्टोरियंस ने या उस टाइम पीरियड के जब ये सिख गुरु थे प्रेजेंट उस टाइम पे राइटर्स ने लिखी गई साखियां हैं। अकॉर्डिंग टू साखी नंबर 29, मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरुजी को 3 ऑप्शंस दिए हैं। क्या ऑप्शंस दिए हैं? अपनी दैवी शक्तियों से कोई चमत्कार दिखाओ, दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन, चॉइस दी उनको कि कोई भी चमत्कार दिखाओ। सेकंड, इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, मुसलमान बन जाओ, अपनी फैमिली को भी मुस्लिम बनाओ। थर्ड, या फिर शहीद हो। सो गुरुजी ने क्या एक्सेप्ट किया? गुरु तेग बहादुर जी ने गुरुजी ने थर्ड ऑप्शन एक्सेप्ट किया कि मैं शहीद हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि भगवान के सच्चे भगत कोई भी चमत्कार नहीं दिखाते। दूसरा, धर्म हर एक की पर्सनल इच्छा है, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का स्वतंत्र अधिकार है, कोई भी किसी पे कोई भी जबरदस्ती धर्म लागू नहीं किया जा सकता, ना ये कभी हुआ है ना कभी होगा। तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। गुरुजी के मन में डर पैदा करने के लिए सबसे पहले औरंगजेब ने क्या आदेश दिए? उनके साथियों को शहीद करने के लिए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, भाई सतीदास, दयाला जी और मतीदास को बहुत ज्यादा तसीहे देकर शहीद किया गया, ठीक है। फिर 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में गुरु जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। दिस वाज द यूनिक मार्टरडम इन द वर्ल्ड लेवल। इस समय जब उनको शहीदी का टाइम था, जो उस दिन का टाइम था, गुरुजी लगातार पाठ और भक्ति में ही लीन थे। सो वी कैन सी दैट गुरु तेग बहादुर जी ने रिलीजियस फ्रीडम के लिए कुर्बानी दी। एक सिख था भाई जैता जी, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की है। और नेक्स्ट इज ये 2 हैं एंड सेकंड एंड थर्ड आप पिक्चर अगर देखोगे वो क्या है? सेकंड इज भाई जैता जी। भाई जैता जी ने गुरु साहिब के शीश का संस्कार किया था। वो चोरी से उनका जो शीश धड़ से अलग हुआ था, शीश को वो संस्कार करने के लिए अनंतपुर साहिब में ले गए थे। उन्होंने
वहां पे भाई जैता जी ने अनंतपुर साहिब में संस्कार किया था। और गुरु गोबिंद सिंह जी जो कि नेक्स्ट 10वें गुरु सिख गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई जैता जी को रंगरेटा गुरु का बेटा कहकर गले लगाया। भाई जैता जी जो थे वो नीवी जाति रंगरेटा से संबंधित थे, बट वो इतने फेमस हो गए कि उन्होंने सिख गुरु का एक बड़ी रिस्पेक्ट के साथ संस्कार किया था। एक और थर्ड जो पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, वो है भाई लखी शाह बंजारा। ये भी सिख है। लखी शाह बंजारा ने गुरु जी के शरीर का संस्कार किया था, जहाँ पे आजकल गुरुद्वारा रकाबगंज बना हुआ है। आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन गुरुद्वारा रकाबगंज। तो गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदियों की एक परंपरा जो है वो शुरू की है। उनकी शहीदी के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादे जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी, जुझार सिंह जी, अजीत सिंह जी की शहादत हुई है। और इस शहीदी के बाद सिख धर्म की पॉपुलैरिटी कह लो, डेवलपमेंट कह लो, और भी ज्यादा एनहांस हुई है। ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पूरे वर्ल्ड लेवल में एक यूनिक बलिदान है, जो कि किसी और धर्म की रक्षा के लिए दिया गया था। एक होता है ना कि अपने लिए किया कुछ, एक है कि किसी और के लिए कुछ किया, फॉर द सेक ऑफ अदर। सो दिस वाज द यूनिक मार्टरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। इस शहादत ने हिंदुओं में उत्साह और आत्म बलिदान की भावना पैदा की। तेग बहादुर जी ने अपने बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी को भी धर्म की रक्षा करने का संदेश दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु बने हैं, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। उन्होंने अपने पिछले जो सारे सिख गुरुज हैं, पिछले 9 गुरुज को की जो प्रथा है उन्होंने आगे कंटिन्यू रखी है। ठीक है। बट गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद कोई भी सिख गुरु नहीं हुआ किसी। उन्होंने जो गुरुगद्दी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को दे दी थी। ठीक है। तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है, जिसका मतलब क्या था, सिखों को संत सिपाही बनाया। इस तरह गुरु जी की शहीदी को हमेशा पूरी दुनिया में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। थैंक यू। This is all about the teachings and martyrdom of Guru Tegh Bahadur ji. Thank you, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है मैम। हाँ जी मैम। मैम आवाज मैम अभी बंद हुई है, पहले से ही बंद थी? मतलब थोड़ी देर पहले? नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी देर से पहले बंद थी, बस 2-3 मिनट से। अच्छा, और 2-3 मिनट तो आई हाँ शुड बस। हाँ कोई नहीं। ओके। तो there was a problem.
मनवीर अब फिर नहीं आ रही तुम्हारी आवाज। बट मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैम अभी मैं स्टॉप हुआ है, मेरा कंप्लीट हो गया मेरा लेक्चर। सो ओके आई ओके, नीड टू आस्क यू, शुड आई रिपीट सम नो 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 नो, लास्ट, लास्ट लास्ट कंक्लूजन दस दो बस। है ना? मैं वही ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। नहीं नहीं, ਓਨਲੀ ज्यादा देर नहीं होया। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ नहीं ਪੁੱਛਣਾ बस ਚਾਹ एक ਰਹੀ दो ਸੀ। मिनट ही थी। ਇੱਕੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸੀ। ਓਕੇ, आई विल टेल द कंक्लूजन देन। सो ओके ओके, हाँ ਹੁਣ आ रही है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदियों की परंपरा की शुरुआत की है। उनकी शहीदी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह की शहादत हुई। और इसके साथ ही सिख धर्म की पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिख धर्म और भी ज्यादा डेवलप हुआ है, और भी सिख सेंटर्स थ्रू आउट द इंडिया एंड इवन वर्ल्ड लेवल पे बने हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी पूरे वर्ल्ड लेवल में एक यूनिक बलिदान है, जो कि किसी और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने दिया है। एक होता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ किया किसी ने, बट दिस वाज द यूनिक मार्टरडम गिवन बाय गुरु तेग बहादुर जी। इस शहादत ने हिंदुओं में उत्साह और आत्म बलिदान की भावना पैदा की। तेग बहादुर जी ने अपने बेटे गुरु गोविंद सिंह जी को भी धर्म की रक्षा करने का संदेश दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी 10th सिख गुरु हुए हैं। सो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की है। उनके बाद उन्होंने जो गुरुगद्दी है गुरु ग्रंथ साहब जी को दे दी थी, और लास्ट सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ही थे। तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना के साथ सिखों को संत सिपाही बनाया। सो वी कैन सी दैट गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी जो है उसको हमेशा पूरे वर्ल्ड लेवल पे याद रखा जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू अनुराधा। Thank you so much, ma'am, for such a wonderful lecture. We are delighted to have you with us. गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के बारे में जो आपने जानकारी दी, that was marvelous. And for formal vote of thanks, now I would like to invite organizing secretary of the event, Mrs. Karamjit Kaur, for formal vote of thanks. And I थैंक यू also अनुराधा। thank you, ma'am. And I also request Dr. Monica to share feedback link in the chat box. थैंक यू अनुराधा। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम डॉक्टर किरण आंगा जी, आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर मनवीर कौर, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द वेबिनार डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर मोनिका, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित किया। साथ ही मैं आज माननीय चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी तथा हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने पूरे हरियाणा के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव को मनाने के लिए हम सबको प्रेरित किया। मैं हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंगरा जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जो हमें इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। विशेष तौर पर मैं आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर मनवीर जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में हमारे विद्यार्थियों को अवगत कराया। डॉक्टर मनवीर जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला और गुरु तेग बहादुर जी तथा सिख धर्म की परंपरा को हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने मानवीय मूल्यों के लिए अपना बलिदान दिया। अपने विद्यार्थियों से मैं आशा करूंगी कि वो इस वक्तव्य को सुनकर अवश्य ही अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी का, जैसा कि डॉक्टर मनवीर ने बताया, कि उनका बलिदान विश्व में एक बहुत ही अलग बलिदान है, जिन्होंने मानवीय मूल्यों को देखते हुए
किसी दूसरे धर्म के लिए बलिदान दिया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने समाज में फैली हुई जो कोई किसी भी प्रकार की किसी राजा की तरफ से या प्रशासकीय उनकी तरफ से की जाने वाली गतिविधियों का विरोध किया और अपना एक एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत किया। और आशा करती हूँ कि हमारे विद्यार्थी इससे बहुत अच्छी सीख लेंगे। और मैं डॉक्टर मनवीर का एक बार फिर हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसने मेरी एक फोन कॉल पे मेरा प्रस्ताव उसने एक्सेप्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद मनवीर, गॉड ब्लेस यू। मेरी छोटी बहन, All of you. थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, ma'am, for such a wonderful vote of thanks. And now feedback link have been shared in the chat box. आप feedback link भर के meeting को leave कर सकते हैं. Thank you everyone for joining us and for making this webinar a successful webinar. Thank you so much. Feedback link आप share कर feedback link भर के आप meeting को leave कर सकते हैं. Connecting to audio आ रहा है ना, देखो लेफ्ट का मेरे को कह रहे